everyone present here. Myself, Alpa Mehta, team member of CAST Foundation, welcome you all to the second day of 5-day health service series of CAST Foundation under the CAST Swasthya Manthan. Yesterday, on 7th September 2020, we had Dr. Suryabhan Dongre who gave us insight on the food poisoning in India. And today, that is 8th September 2020, we are hosting our 12th health webinar on exploring the application of naturopath and Ayurveda. To begin the session, I would like to invite Dr. Avkash Jadhav, founder trustee of CAST Foundation, to give information on CAST Foundation. Sir, please Yeah. welcome. Yeah. Thank you, Alpa. Yesterday in the 11th medical webinar, the session was conducted very well by Dr. Suryaban Dongre and equally moderated fabulously and meticulously by Alpa. There's a Greek philosopher, Hippocrates, and he had said once, let food be thy medicine and medicine be thy food. And I think today's session is a more emphasis on understanding the nutritious value. Kash Foundation is a Mumbai-based NGO and works on 4 verticals: education, environment, health, and heritage. And we are continuing with our 5-day health series. Today is the 12th day. Once again, we welcome you all on this day, and we'll try to see the concluding part of Dr. Suryavan Dongre. On behalf of Kash Foundation, I welcome Dr. Dongre for his part 2 sequence in this 5-day web series. I would like to end with a small quote by Thomas Edison when he said, "The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition." And that what perhaps is Dr. Dongre is going to address us today. Thank you. And once again, welcome all. Over to you, Alpa. Thank you, sir. Now I would like to invite Renuka Vyas, Joint Director, Health Cast Foundation, to give information on CAST Swasthya Manthan. Renuka, please unmute yourself. थैंक यू अल्पा। मैं आप सबका काश स्वास्थ्य मंथन में स्वागत कर रही हूँ। Kash Swasthya Manthan is a very promising name under the banner of Kash Foundation. It's set to make a mark in the field of healthcare. Kash Swasthya Manthan aim is to reach out to the masses of all sections of societies and to make people aware that one can live without medicine by simple way of following the nature. People are unaware of the exact benefits of alternative medicine and therapies, which if followed with proper guidance and knowledge can lead to a major savings in their medical expenses. Apart from keeping medically fit, Kash Swasthya Manthan's main aim is to make complete awareness to the society in the field of, in this field, through renowned experts and to accomplish the vision of Kash Swasthya Manthan for a healthy and disease-free society. Thanks to all of you for joining us. Over to you, Alpa. Thank you. Thank you, Renuka Vyas. Now I would like to invite today's speaker, Dr. Suryabhan Dongre, for the second day of our 5 days health series. Dr. Suryabhan Dongre is a head of Department Ayurveda Mahavidyalaya at SIAL. He has done graduate and postgraduate in forensic medicine and toxicology from Government Ayurveda College, Nagpur. He has done LLB, LLM, and D from the Mumbai University. Dr. Suryabhan Dongre have received Samaj Bhushan Puraskar, Maharashtra Deep Puraskar, and Rashtriya Ekat Mata Fellowship. He has been the best doctor for the dedication in medical service, has 21 years of teaching experience and 25 years in the medical services. He is also a chairman of Anti-Ragging Committee and NSS Program Officer. Today, he will be speaking on pesticides and its effects on human on 12th health webinar of CAST Foundation. Sir, the floor is yours. Lecture be for the around
40 minutes and 20 minutes for the question answers. Sir, over to you, sir. Good evening to everybody. से रिलेटेड जो कुछ भी टॉपिक रहेगा वो भी इसमें कवर अप करने की मैं कोशिश करूंगा। कल फूड पॉइजनिंग का जो ट्रीटमेंट है, जो मैंने समय कम था इसलिए शॉर्ट में लिया, तो मैं उसको लास्ट में आप जैसा क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइप से मैं आपको डिटेल में आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो आज जो है टॉपिक एक बड़ा मेजर टॉपिक है कि जो सब लोगों के हेल्थ से रिलेटेड है, जीवन से रिलेटेड है और हैबिट से रिलेटेड है और ये एग्रीकल्चर, इससे भी रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक का नाम है पेस्टिसाइड्स एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट और इफेक्ट्स इन ह्यूमन बीइंग्स। यानी ह्यूमन बीइंग्स जो है, मानव है, इस मानव में पेस्टिसाइड का क्या क्या इफेक्ट होता है, कैसा गलत इफेक्ट होता है, और तो ये जो है वो आज डिस्कशन करेंगे। तो जब पेस्टिसाइड ये बात जब अपन करते हैं तो ये सब कॉमन बात हो गई है कि पेस्टिसाइड यानी जो भी अपने को खाना मिलता है, जो फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती है, तो इन सब में पेस्टिसाइड मिलाया जाता है करके मालूम है। तो इसका ये तो कॉमन बात हो गई। और दूसरी बात ऐसी है कि इसके अंदर में अवेयरनेस जो है, जितना चाहिए उतना अवेयरनेस आदमी में नहीं है। इसको क्या लगता है कि जो ऊपर ऊपर से जो क्वालिटीज दिखती है फल की, सब्जियों की, और उसका जो साइज दिखता है उसके ऊपर से लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो ले लेते हैं और खा लेते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता कि वो जहर खा रहे हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड है एक भारत की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड अपने भारत में यूज किया जाता है। हालांकि नियर अबाउट 50% वर्ल्ड में जो जितना भी पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन होता है, नियर अबाउट हाफ अपने इंडिया में यूज किया जाता है। बाकी जो देश में क्या हो गया है कि उसमें बैन आ गया है कि पेस्टिसाइड यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ का जो भी माल या कुछ फल या सब्जियां या जो भी ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, ये सब जो जाता है तो वो वहाँ पे अगर पेस्टिसाइड अगर है तो उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा है कि जो रिजेक्ट किया हुआ जो माल जो होता है वो इंडिया के लोगों को खिलाया जाता है। बहुत बेकार बात है, क्योंकि अब यहाँ के जो लोग जो है ये अपने ही लोगों के को मारने के कोशिश में लगे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है कि उसके साइड इफेक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ी समस्या है लाइफ के लिए। ये बड़ा अलार्मिंग सिम्टम्स है अगले जनरेशन के लिए, कि जो भी जनरेशन आएगी, जैसा हेल्थ अगर अच्छा है बच्चों में तो उनका फिजिकल, माइंड और सोशल और जो स्पिरिचुअल स्टेटस है वो अच्छा रहता है, स्टेबल रहते हैं, वो अच्छा याद रख सकते हैं, बता सकते हैं, या क्या खाना क्या नहीं खाना ये उसमें एक मालूम हो सकता है। तो इसका
ये क्यों होता है और इसकी जरूरत क्या है। ये इसीलिए होता है कि यहाँ जो व्याधि के जो कारण है, जो रोगों के जो कारण है, इस कारण में प्रमुख 3 कारण दिया है। इसमें प्रज्ञापराध, असात्मेन्द्रियार्थ संयोग और परिणाम, ये 3 जो कारण यहाँ पे जो दिया है कि लोगों का जो पहचानने का है ना, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये जब तक वो डिसाइड प्रॉपरली नहीं कर पाते तब तक उनको व्याधि ये हो जाएगी, यानी वो बीमार गिर सकते हैं। तो इसमें प्रज्ञापराध बोले तो जो बुद्धि है, बुद्धि क्या करती है कि क्या गलत है क्या अच्छा है, ये वहां पे सोचती है कि कौन सा फल अच्छा है, कौन सी सब्जी अच्छी है, कौन सा धान्य अच्छा है और क्या खाना अच्छा रहेगा। ये अगर किसी ने एक्यूरेटली उसको डिसाइड किया और वो उसके बारे में अगर अवेयर है तो फिर भारत या जो कुछ भी लोग हैं वो इससे मुक्त हो सकते हैं। तो प्रज्ञा यानी बुद्धि, और इसका अगर जो भी अपराध करता है, जो जिसको मालूम नहीं होता है, तो उसको प्रज्ञापराध बोलते हैं। उसके बाद में असात्मेन्द्रियार्थ संयोग। असात्मेन्द्रियार्थ संयोग जो है ये इस बात से है कि जो लोग क्या होते हैं कि जो ये समझो मीठा है तो ज्यादा खाते हैं, खट्टा है या कुछ कड़वा है तो कम खाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मीठा चीज है वो ज्यादा खाए, यानी जो इंद्रिय है, इंद्रिय का जो समझो टंग जो है, इसकी अच्छी टेस्ट आई तो लोग ज्यादा खाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना अपने को लगता है जो प्रॉपर है वही उतना ही प्रमाण में लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो असात्मेन्द्रियार्थ संयोग होता है। आंखों से, नाक जो है उससे, कान, जो भी पंच ज्ञानेन्द्रिय है उनसे, उनका जो सब्जेक्ट रहता है, विषय जो रहती है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये इसकी जो सब्जेक्ट्स है, इसके द्वारा अगर अच्छा ध्यान में लाए तो ही वो हेल्थ बना रह सकता है और पेस्टिसाइड को पहचान सकता है कि कौन सा फल या कौन सी सब्जी भाजी अच्छी है, वो ये कर सकता है। तो ये एक अलार्मिंग सिम्टम्स है अगले जनरेशन के लिए, तो अभी ही अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो ये अवेयर कैसे होएगा कि जब तक आप लोगों को ये पेस्टिसाइड के बारे में मालूम नहीं रहेगा तो वो अलार्म यानी वो दूसरे को बता भी नहीं सकते कि क्या चीज गलत है और क्या चीज अच्छा है। तो आज वो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे ये पेस्टिसाइड के बारे में, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है इसके बारे में कैसा पता रहेगा। तो पहले जो है मेन पेस्टिसाइड्स में जो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स जो है, ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड और ऑर्गेनिक क्लोरीन कंपाउंड। जैसा हिटलर ने क्या किया था कि लोगों को मारने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड लोगों को दिया था और वो देने के बाद में फिर लोग मर गए थे। तो यही कंपाउंड जो है लोग जो खेती में इंसेक्टिसाइड के तहत यूज करते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पज के, इसमें वहां पे यूज होता है, स्प्रेइंग होती है, तो वो अगर देखा जाए तो उसमें वो एब्सॉर्ब होता है और वो हानिकारक होता है। तो ये क्या है ये देख लेंगे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो है इसको, इसका जो क्लासिफिकेशन है ये न्यूरोटिक, सेरेब्रल और इनेब्रियंट है, यानी ये ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन के नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। दूसरा है ये सीएनएस को डिप्रेसेंट भी करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको ये डिप्रेस करता है। और कोलिनस्टेरेज इनहिबिटर है। कोलिनस्टेरेज इनहिबिटर बोले तो एसिटिल कोलिन जो है ये एक जो एंजाइम है इसको ये इनहिबिट करता है, रोकता है, और ये
पेस्टिसाइड जो इंसेक्टिसाइड के ग्रुप में आता है। तो ये जो है इसका दो टाइप में अपन इसको डिवाइड करते हैं। ये पेस्टिसाइड्स जो है वो एरिल और अल्किल, ऐसे इसके दो ग्रुप होते हैं, एक अल्किल ग्रुप है और दूसरा एरिल ग्रुप है। तो अल्किल ग्रुप में जो है इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स जो है कि जैसा हेक्साइथिल टेट्राफॉस्फेट्स, टेट्राइथिल पायरोफॉस्फेट्स, ऑक्टामिथिल पायरोफॉस्फेट अमाइड और मेलेथियोन, ये यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद में जो है दूसरा एरिल का जो है वो पैरेथियोन, जिसको फैलेडियोल बोलते हैं, और दूसरा है डाइजेनियन जो मार्केट में मिलता है टिक 20 नाम से। तो टिक 20 नाम से ये पेस्टिसाइड मिलता है। और बहुत से लोग जो है क्या करते हैं कि आत्महत्या या कुछ ये करने के लिए खाते भी है उसको, वो बाद में अपन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसकी एक्शन कैसी होती है ये आपको बताता हूँ कि ये जब भी लेते हैं तो ये एब्सॉर्ब होता है, स्किन से एब्सॉर्ब होता है, इनहेलेशन से एब्सॉर्ब होता है। जब वो एंट्री करते हैं यानी खाते हैं, ओरली जो इनटेक होता है, इंजेस्ट करते हैं, उससे होता है, और इनहेलेशन से भी होता है। तो ये उस ऑर्गन को एब्सॉर्ब हो जाता है और एब्सॉर्ब होने के बाद में फिर उस ढंग से अपना गलत तरीके से साइड इफेक्ट करना चालू हो जाता है। तो ये जो है ये पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आदमी की, इसको डैमेज करता है। तो कैसा करता है कि यहाँ पे कुछ मायोन्यूरल जंक्शन रहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वो मायोन्यूरल जंक्शन और सिनॉप्सिस ऑफ गैंग्लियन जो है इसको इनहिबिट करता है, रोकता है। यानी जो नर्वस सिस्टम का आ, आ, जो वाहन होता है, यानी यहाँ एक जगह से दूसरे जगह पे जो सेंस जाता है, यानी नर्वस सिस्टम के द्वारा जो भी सेंसरी ऑर्गन एक का सूचना दूसरे को देते हैं, तो ये क्या करता है उसको रोक देता है। और रोकने के बाद में फिर यहाँ पे टिंगलिंग, नमनेस, ऐसे जो है वो सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। वॉलेंटरी एक्टिविटीज इसमें डैमेज होती है, इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज जो है वो डैमेज होती है इसकी, और उसके सिम्टम्स जो है वो अपने को दिखाई देते हैं। तो अगर ये स्किन के ऊपर अगर लग गया तो स्किन में भी इरिटेशन निर्माण होता है। कुछ स्किन के जो डिसीजेस होते हैं, अगर ये सांस में अगर गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर ये जाता है, तो रेस्पिरेटरी डिसीज जैसा न्यूमोनिया टाइप जो है वो ये हो जाता है। इसमें जैसा खाने के बाद में नौसिया, वोमिटिंग जो है, और डायरिया, स्वेटिंग इसमें आता है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये खाने के बाद में कैसा पहचानने का आदमी को, तो स्वेटिंग हो जाता है। उसके बाद में सलाइवेशन आ जाता है, लैक्रिमेशन जो है वो आता है, यूरिनेशन यानी बार बार यूरिन होती है, डिफिकेशन जो यहाँ पे होता है, और इमेसिस यानी वोमिटिंग जो है ये होता है। बाद में सबसे मेन बात है कि जैसा सिनॉप्स ऑफ गैंग्लियन के ऊपर इसका इनहिबिशन होता है, तब जो है जो मसल्स है वो ट्विस्ट होते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स जो है वो बोलते हैं। तो और दूसरा जो है इसमें धीरे 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 इडिमा होता है, बाद में सिनकोप होता है, लंग्स उसका डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, और बाद में कोमा में जाके आदमी मरता है। तो इस टाइप का इसका जनरल जो है साइन एंड सिम्टम्स ये पॉइजनिंग का दिखाई देता है। उसके बाद में ये सिम्टम्स जो है, ये सिम्टम्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो इसका 3 कैटेगरीज जो है, तो उसका पहला जो कैटेगरीज है उसको मस्करेन इफेक्ट बोलते हैं, मस्करेन इफेक्ट। तो ये मस्करेन जो इफेक्ट जो है, तो इसमें अस्थमा ज्यादा दिखाई देता है। अस्थमा देखो 3 कैटेगरीज में इसके इफेक्ट होते हैं।
क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पॉइजन क्या है, कैसा उसके इफेक्ट होते हैं, क्या होता है। उसके बाद में अपन ट्रीटमेंट देखेंगे, आदमी मरने के बाद में उसका भी क्या क्या देखेंगे, और मेडिको लीगल उसका क्या वैल्यू होता है, ये सब इसके बाद में एक एक करके अपन देखेंगे। तो इसका वोमिटिंग, डायरिया, नौसिया और एनोरेक्सिया, ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स अपने को इसके ये मस्कुराइन जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट में दिखाई देता है। और लैक्रिमेशन जो है, यानी आंखों के उसमें जो टीयर्स आते हैं, तो टीयर्स में खून आता है, यानी लाल रंग का जो है वो अपने को दिखाई देता है। ये कि लैक्रिमेशन जो है वो अपने को यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में इसकी पिन पॉइंट्स, जो प्यूपिल्स जो है वो एकदम बारीक हो जाते हैं, पिन पॉइंट्स प्यूपिल यहाँ पे हो जाती है। ब्रेडिकार्डिया ये होता है, यानी ब्रेडिकार्डिया का मीनिंग ये है कि जो हार्ट बीट है ये कम हो जाते हैं। हाइपरटेंशन होता है इसमें, यानी जो बीपी जो है ये बढ़ता है। ये सिम्टम्स अपने को यहाँ पे दिखाई देते हैं। दूसरा जो इफेक्ट है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे होता है, तो उसको निकोटिनिक इफेक्ट बोलते हैं, निकोटिनिक मैनिफेस्टेशन उसको बोलते हैं। तो इसमें मसल जो है वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है और मसल में वीकनेस आ जाता है, अगर चलते वक्त मसल वीक हो जाती है। और दूसरा बात है निकोटिनिक, यानी इसको जैसा निकोटीन में, यानी तंबाकू खाने के बाद में जैसे इफेक्ट होते हैं कि तंबाकू खाने के बाद में जो वेसल्स है, वेसल्स में छोटापन हो जाता है, यानी उसका जो जाड़ी है ये कम हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो बीपी बढ़ता है। तो उस टाइप का इफेक्ट यहाँ पे भी होता है। और साइनोसिस साइनोसिस होता है। उसके बाद में तीसरा जो कैटेगरी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है कि इसको डर लगता है, ये आदमी ने लेने के बाद में उस आदमी के मन में डर पैदा होता है और इरिटेबल, यानी आदमी एकदम इरिटेट हो जाता है और उसको ट्रिमर्स आते हैं, उसके हाथ जो है ऐसे कांपने लगते हैं, थर 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 ऐसा हाथ जो है वो कांपते हैं, जैसा अल्कोहल लेने के बाद में जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वैसे ही विड्रॉल सिम्टम्स इसमें देखो दिखते हैं। आईलिड जो है और फेस टंग जो है ये इसमें भी दिखाई देना कम हो जाता है। और रेस्टलेसनेस हो जाता है इसमें, कंफ्यूजन आदमी की उसमें कंफ्यूजन अपने को दिखाई देता है, यानी एक आधी बात जो है वो समझ में नहीं आती है, कंफ्यूज होता है, बाद में कोमा ये अपने को दिखाई देता है। तो इसको ये जो है ये ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड्स है। तो ये ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड में फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोलिड जो कंपाउंड्स जो है ये उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका अगर समझो 1 ग्राम भी अगर किसी ने ले लिया, खा लिया, तो भी आदमी मरता है। मेलेथियन और डाइथेनिन जो है, जिसको टिक 20 बोलते हैं, मार्केट में आपको एक बॉटल आती है टिक 20 नाम से, आप अगर मेडिकल में जाने के बाद में देते हैं, तो वो 1 ग्राम अगर आपने ओरली अगर पी लिया तो आदमी मरता है। एक ग्राम सिर्फ वो उसका फेटल होता है। और कितना कि 6 घंटे में आदमी मर जाता है, 6 घंटा जो इसका मर जाता है। तो इसका एक्टिव जो प्रिंसिपल रहता है ये फॉस्फेट्स जो है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स इसके ये होते हैं। तो इसके बाद में ऐसा होने के बाद में आप क्या करने का, कौन सा प्रिकॉशंस लेने का, ये इस पे पॉइजनिंग हो गई है, इसका पॉइजनिंग हो गई, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर स्प्रे अगर करने के बाद में वो स्प्रे ज्यादा प्रमाण में अगर किसी खेती में मारा गया, या बार बार एक मारने के बाद में उसके कुछ टाइम रहता है कि अगर किसी फल में या रूट में मारने के बाद कुछ टाइम के, हर एक टाइम का उसका एब्सॉर्प्शन पीरियड होता है, पीक पीरियड होता है। वो पीक पीरियड के बाद में ही वो जो पदार्थ है या धान धान्य है या वेजिटेबल्स है
उसको यूज करना पड़ता है। उसके पहले अगर समझो यूज किए तो वो आदमी में पॉइजनिंग ये हो जाती है, पेस्टिसाइड जो है उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। छोटे बच्चों में इसका ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट होता है। आप देखेंगे कि छोटे बच्चों में ऐसा पैरालिसिस हो जाता है इससे। छोटे बच्चे के हाथ पैर जो है एकदम पैरालाइज हो जाते हैं। पैराप्लेजिया जैसे सिम्टम्स यहाँ पे निर्माण होते हैं। आंखों और नर्वस सिस्टम जो है ये कड़क होती है, मसल जो है ये भी कड़क हो जाते हैं। तो और जीआईटी अगर देखेंगे तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी इसका असर ये होता है कि एब्डोमिनल पेन होता है। इसके वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई देते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो ये होने के बाद अभी मेन जो है कि कल अपने ट्रीटमेंट अपने कम लिए थे, आज मैं इसका ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ कि ऐसा हो गया तो ट्रीटमेंट क्या करना। तो ट्रीटमेंट ये लेना कि जैसा भी कोई आदमी के ऊपर ये स्प्रे हो जाता है गलती से, या गलती से कोई आदमी ये पी लेता है, या कोई इनहेल करता है, या कोई किसी के स्किन के ऊपर ये गिर जाता है, क्योंकि जब स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद में अगर किसी ने हैंड ग्लोव्स और मास्क या कैप अगर नहीं पहना होगा, प्रॉपर किट नहीं पहनी होंगी, तो वो जो है वो आंखों में, स्किन में, शरीर में लगता है और इनहेलेशन के द्वारा अंदर जाता है और उसका साइड इफेक्ट वहां पे हो जाता है। तो ऐसा होने के बाद में वो अपन क्या करने का, तो सबसे पहले जो पेशेंट है, पेशेंट को समझो खेती में वो पेशेंट है और उसको चक्कर आ गई और उसको इफेक्ट हो गया, तो उसको वहां से दूसरे जगह पे अपने को लेके जाने का है, यानी उसको वहां से हिलाना है, उसका जो एक्सपोजर है उसको हटाना है और दूसरे जगह पे वहां पे लेके जाने का है। और बाद में क्या है कि उसका जो शरीर है, शर्ट है या जो भी कपड़े है, हाथ है, ये उसको सोप और वाटर से धोना है। उसके बाद में अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन से आपको इसको धोना है, क्योंकि ये सादा पानी से अगर धोए तो ये जल्दी धोया नहीं जाता है। इसीलिए इसको अपने को अल्कलाइन जो सॉल्यूशन है, अल्कलाइन जो वाटर है, इससे अपने को धोना पड़ता है। और इसके बाद में जो आदमी ओरली लेता है उसके लिए भी क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है वो 1 से लेके तो 1:5000 ml जो है वो लेके आपको उसको सॉल्यूशन बनाना है, वो लिक्विड में, और वो उसको पिलाना है। पिलाने के बाद में फिर उसका स्टमक वॉश करना है। तो स्टमक वॉश भी कैसा करना है उसके भी बारे में मैं आपको लास्ट में जब टाइम रहेगा तो वो मैं बताऊंगा कि स्टमक वॉश करने के बाद फिर क्या करने का, कि सभी तो पॉइजन निकलेगा नहीं, कुछ पॉइजन वहां पे रहता है, तो अपने को वहाँ एंटीडोट यूज करना पड़ता है। तो एंटीडोट कौन से, कि इसमें मैंने एक सिम्टम्स बताया कि प्यूपिल्स यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है, प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है, और अगर समझो प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट रह गई तो आदमी मर सकता है। तो क्या करना पड़ता है कि प्यूपिल्स को अपने को डायलेट करना पड़ता है। तो प्यूपिल डायलेट करने के लिए इंजेक्शन एट्रोपिन ये यूज करना पड़ता है। इंजेक्शन एट्रोपिन आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इंजेक्शन एट्रोपिन जो है ये आपको सबक्यूटेनियसली आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप इंट्रामस्कुलरली यूज कर सकते हैं, या इंट्रावेनस जो है यानी सलाइन में डाल सकते हैं। तो ये कब तक डालने का है, कि जब तक वो प्यूपिल्स जो है वो डायलेट जब तक नहीं होती है तब तक ये आपको डालना है वहां पे। और ऑब्जर्व करना है कि पहले जो 2 घंटे जो है, ये 2 घंटे में 12 मिलीग्राम एट्रोपिन जाना चाहिए, 12 मिलीग्राम एट्रोपिन जाना चाहिए। आप लोग देखेंगे तो उसमें एक छोटी एम्पूल आती है एट्रोपिन की, तो वो छोटी एम्पूल जो है 1 cc की रहती है, तो उसमें 0.65 मिलीग्राम ये रहता है उस एट्रोपिन।
तो आपको वो हिसाब से वो डोज जो है वो मेंटेन करके आपको ये उसको देना है। और उसके बाद में आप लोगों को इंजेक्शन पाम देना है। इंजेक्शन पाम जो है ये एंटीडोट के स्वरूप में देना है। तो ये देने के बाद में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड्स है ये न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी उसका जो इफेक्ट है ये कैंसल हो जाता है। तो इसीलिए वो पाम करके इंजेक्शन है। पाम बोले तो उसका यह है कि पायरिडीन एल्डोक्सी मिथोडेट ये नाम का इंजेक्शन जो है ये 1 से 2 ग्राम के इसमें अपने को ड्रिप में डालना पड़ता है, सलाइन में डालना पड़ता है 12 आवर्स की, यानी 12 घंटे जो है उसमें आपने को वो देना पड़ता है। उसके बाद में भी कुछ कंपाउंड्स है, जैसे ऑक्साइम करके एक मेडिसिन है, ऑक्साइम मेडिसिन। तो वो ऑक्साइम मेडिसिन उसका प्रोटोपाम करके वहां पे आता है, तो वो देने का प्रोटोपाम क्लोराइड। और उसका पैलिडोक्साइम करके एक कॉम्बिनेशन में आता है। तो ये पैलिडोक्साइम जो है वो पैलिडोक्साइम प्लस एट्रोपिन ये आपको देना है, उनको कॉमन मिला के देना है। और ये जो है डाइजेपाम के मिक्स करके अगर मिलाए, डाइजेपाम अगर मिलाए तो क्या हो जाएगा कि उसका अच्छा इफेक्ट हो जाता है इसका, यानी ये ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं उसको न्यूट्रल करता है। तो ये ध्यान में देखना चाहिए। दूसरा जो है कुछ आयुर्वेद में जो है कुछ सिम्टम्स का ट्रीटमेंट बताया है। तो आयुर्वेद में भी इसका एंटीडोट बताया गया है। तो इसमें विरेचन करने के लिए बोला है, विरेचन यानी परगेटिव्स देना चाहिए। और परगेटिव्स के बाद में इसको डायूरेटिक्स जो है, डायूरेटिक्स इसलिए कि वो जो पॉइजन है ये पॉइजन यूरिन के द्वारा जो है आपको बाहर निकालना है। और आप उसको रेस्टलेस जो है वो कम करना है। इसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि कन्वल्शंस भी आते हैं। अगर कन्वल्शंस भी आ गए तो आपको डाइजेपाम के इससे कम हो जाते हैं। तो ये पॉइजन जो है ये इसका आप जो है क्या करेंगे कि अगर समझो आप डायूरेटिक देने का, और आयुर्वेद में मैंने जो बताया कि कुछ ऐसे द्रव्य है, कुछ लिक्विड्स है, जैसा त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण का काढ़ा बनाने का, वो देने के बाद में उसको उल्टी करवाने की। उसके बाद में जो यष्टि मधु करके ज्येष्ठ मध उसका जो काढ़ा है वो उसको दे सकते हैं। तो उसे भी जो है वोमिटिंग हो सकती है, तो वो भी कम हो सकती है। उसके बाद में ये कड़ू तुरई करके आती है, वो भी आपने उसका सॉल्यूशन अगर बना के अगर दे दिया तो उसे भी आप वो दे सकते हैं। तो उसका कम हो जाता है इफेक्ट। इसके बाद अगर समझो इतना करने के बाद में भी क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की प्रमाण जो है वो कम हो जाता है, तो आप लोगों को वेंटिलेशन देना है, प्रॉपर वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन के इसमें आप अगर खिड़कियां ओपन करने की या फिर ऑक्सीजन जो है वो लगाने का है, वेंटिलेटर यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो ये ट्रीटमेंट जो है आपको देना है। इसके बाद में भी आपको जो कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं उस सिम्टम्स का ट्रीटमेंट देना है। जैसा वोमिटिंग होता है, तो वोमिटिंग होने के बाद आपको वोमिटिंग या डायरिया, तो आपको डिहाइड्रेशन, मैंने कल बताया कि डिहाइड्रेशन के वक्त आपको फ्लूइड मेंटेन करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मेंटेन करना है। और कुछ मेडिसिन जैसा है इसमें, तो मेडिसिन के इसमें जो पेरिनॉम करके मेडिसिन आती है, तो आप मेडिसिन दे सकते हो, उसमें मेटाक्लोप्रोमाइड रहता है, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद में हेलो
हेलो। हेलो हेलो या सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अपने पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कैन यू कंक्लूड रिमार्क दे देंगे? 2-3 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक है पूछने ठीक। हैं। या हाँ, तो सर ओनली 2 मिनट्स, हाँ और जिनको भी क्वेश्चंस पूछने हैं अपना चैट बॉक्स में आप लिख लीजिए, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे जा रहे हैं 2 मिनट में। हाँ सर। या या और थैंक यू सर। बाकी भी मुझे कुछ बताना था। या ओके सर, वो क्वेश्चन आंसर्स में अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में एंड में ले लेते हैं। अच्छा ठीक है। ओके सर, ले लो क्वेश्चन आंसर्स। क्या आपको कुछ 2-3 मिनट आपको कुछ बताना है? नहीं, मुझे और एक ये बताना था कि ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड है, ये भी मुझे बताना था ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड के बारे में कि ऑर्गेनोक्लोरीन ओके कंपाउंड्स, ये तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड का मैंने डिटेल बताया ट्रीटमेंट, और उसका अभी मुझे ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक है, तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी जो है उसको कवर अप करूँ, और बाद में लास्ट में अपन एक ये ले लेंगे, 10 मिनट में मैं उसको ये करके यानी अभी अपने पास में जो समय है तो उसके हिसाब से मैं वो कंप्लीट करता हूँ, और बाद में आप क्वेश्चन आंसरिंग कीजिए तो मैं एक ही साथ में आपको दूंगा। ये सर सर चलेगा? 5 मिनट सर। सर बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत आ गए हैं, हमको क्वेश्चन से ज्यादा लेना है। या अच्छा ओके, ठीक है थैंक यू ठीक। सर। तो दूसरा जो है वो मैं शॉर्ट में ले लेता हूँ, फिर दूसरा कि ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड, तो ये ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड जो है ये भी पेस्टिसाइड के इसमें आता है, और इसमें इसके भी 4 ग्रुप में उसको डिवाइड अपन करते हैं। तो एक डीडीटी आपने नाम सुना होगा, पाउडर आता है डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन जो है वो। दूसरा जो है बीएससी करके पाउडर है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का जो है वो है। उसके बाद में एंड्रीन है, जैसा उसको प्लांट पेनिसिलिन बोलते हैं, और टोक्साफिन करके रिलेटेड जो ड्रग्स जो है। तो ये जो यहाँ पे 4 टाइप के हैं, जैसा डीडीटी है, बीएससी पाउडर है, एंड्रीन है, एंडोसल्फान है, ये भी पेस्टिसाइड में आते हैं, और खेती के इसमें इसको ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। तो ये पेस्टिसाइड जो है आपको खेती में देने के बाद में क्या होता है, जैसा देखो पंजाब में वगैरह जो गेहूं होता है तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड यहाँ पे यूज होता है, और गेहूं के इसमें आपको ऐसे डिसीजेस होते हैं कि कैंसर जैसे जो है डिसीजेस आपको बहुत दिखाई देते हैं। तो किसी ने वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि उसको उतना डिटेल में नहीं चाहिए, शायद ऊपर ऊपर का चाहिए, तो ठीक है मैं ऊपर ऊपर का आपको वो बता देता हूँ। तो ये जो है अगर जो स्प्रे करने के बाद में ये क्या होता है कि उसको आप जैसा फॉर एग्जांपल मैंने जो बताया कि जो बनाना वगैरह जो है, टोमेटो जो है, तो ये जो राइप या फिर मैंगो है, तो इसमें क्या होता है कि जो कच्चे आम रहते हैं, तो कच्चे आम को पकाने के लिए यानी कच्चे आम जो है उसको क्या करते हैं कि पेस्टिसाइड डालते हैं या केमिकल्स डालते हैं, और उसको राइपनिंग, इसको बोलते हैं राइपनिंग एजेंट, वो डालने के बाद में फिर कैल्शियम, वो आम जल्दी से जल्दी पकता है, और वो पॉइजन जो है उसमें जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड करके ये है। तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड जो है इसमें हेवी मेटल रहते हैं, ब्रिंज, तो ये हेवी मेटल के इसमें आर्सेनिक वगैरह जो रहता है। और वेजिटेबल्स जो है, वेजिटेबल्स में भी वेजिटेबल जो पॉइजन है, तो उसमें भी क्या होता है कि वैक्स वैक्स है या स्प्रे वगैरह करते हैं, तो स्प्रे में आपको आ, ये क्या बोलते हैं उसको, ये कैल्शियम कार्बाइड तो होता ही है, डाइफिनिल अमाइन, डाइफिनिल अमाइन का यहाँ पे एक एजेंट यूज करते हैं, और वैक्स करके है वो यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसके वजह से वो फल जो है ज्यादा दिन तक टिकता है, और वैसा का वैसा अगर खाया तो फिर उसमें वो पेस्टिसाइड जो है आदमी के अंदर में जाते हैं। तो कुछ पेस्टिसाइड जैसे जैसा मैंने अभी जो ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड जो है ये बताया है, डीडीटी एंड्रीन, तो ये जो है
आपने फल धोने के बाद में तुरंत वो पानी से नहीं धोए जाते हैं। तो ये डिटॉक्सिफाई कैसा करने का, तो इसको जो है अपने को अल्कलाइन वाटर लेना पड़ता है या बेकिंग सोडा लेना पड़ता है। बेकिंग सोडा अगर अगर क्या है कि जितने भी सब्जी भाजी आते हैं कि एक कंटेनर में रख देने का और उसमें बेकिंग सोडा डाल देने का, उसमें थोड़ा सा एक आधा एक घंटा रखने का, तो और उसको थोड़ा सा वॉश करने के बाद में ये जितने भी पेस्टिसाइड है वो निकल जाते हैं और आपको एक पेस्टिसाइड फ्री टोमेटो जो है, ब्रिंजॉल है, बनाना है, ये मिलते हैं। जैसा दूसरा एक ये है कि कैबेज वगैरह जो रहता है, तो कैबेज को डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या करने का अपने को कि पहला जो ऊपर का जो कवर रहता है वो निकाल देने का है और उसके बाद में फिर उसको ये बेकिंग सोडा जो है उसमें डाल के रख देने का, तो वो धोने के बाद में उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। तो दूसरा जो है ये यहाँ पे जो पेस्टिसाइड जो है जिसके इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट करके रहता है, जो बेकिंग सोडा जो बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अगर धोए नेचुरल, जैसा बीच बीच में वो क्वेश्चन आ रहे हैं शायद, तो फिर अपने को टाइम तो मैं कब क्वेश्चन मिलेगा? आंसर्स ले लूं सर देन मैं हाँ क्वेश्चन वैसा ही आंसर्स ले ले लो लूं और उसके उससे। बाद में अगर हाँ, मिलता है तो मैं क्या है जिसको यस जो भी यस, क्वेश्चन है तो उसको फूड पॉइजनिंग के या पेस्टिसाइड के तो मैं कवर अप कर देता हूँ। ओके सर, हाँ तो ओके सर, ओके, हाँ पूछ लीजिए। yeah हाँ sir, okay, thank you sir for your wonderful talk on pesticide and its effect on human being. अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स ले रही हूँ। एक क्वेश्चन है ना हाँ कल से आ रहा है, वो कल के लिए है हाँ स्पेशली, कैन हनी हाँ। बी पुट इन वार्म वाटर फॉर ड्रिंकिंग? देखो हनी का जो है मैंने आपको बताया कि अगर ओरिजिनल हनी है तो आपको उसको लेना है तो ल्यूकवार्म वाटर में चल सकता है, लेकिन अगर उसको गर्म वाटर जो है उसमें नहीं चल सकता है। गर्म वाटर जो रहता है तो उसमें वो नहीं चलता है, इसीलिए आपको लेना है तो पानी में डाल के आपको कोमट पानी में ले सकते हैं, या फिर ऐसा ही अगर खाए तो उसका इफेक्ट ज्यादा है। ओके, अगर कोई ओके सर, अभी डायबिटीज के भी पेशेंट है, अगर देखो उसका टेस्ट भी है, टेस्ट भी रहता है कि ओरिजिनल हनी क्या है, तो पानी में डालने के बाद में अगर उसको थोड़ा सा अगर आपने उसको घिस लिया तो क्या होता है कि आपको कुछ ऐसा केमिकल फार्मूला कैसा रहता है उस टाइप का वो स्ट्रक्चर वहाँ पे दिख जाता है आपको, तो समझ लेने का कि ओरिजिनल हनी है। और किसी को पूछना है तो पूछो। यस यस, यस यस सर, एक और क्वेश्चन है, हाउ टू डिफरेंशिएट नेचुरल वैक्स एंड सिंथेटिक वैक्स? अच्छा तो नेचुरल वैक्स जो है वो वो जो है कैसे है कि जो दवाई में यूज कर यानी मेडिसिन जो है उसमें भी वैक्स यूज होता है, और सिंथेटिक वैक्स जो है वो जो केमिकल कंपाउंड्स जो है, केमिकल कंपाउंड्स को जैसा पेट्रोलियम जेली वगैरह जो रहता है कि जो डाइजेस्ट नहीं होता है, और जैसा कुछ कैप्सूल वगैरह जो रहते हैं जहाँ पे जो यूज करते हैं तो वो कैप्सूल का जो कवर रहता है तो वो अगर एडिबल होता है और कुछ नॉन एडिबल होता है, तो एडिबल अगर है तो वो आप उसमें यूज किए तो कोई उसका दुरुपयोग नहीं होता है, और अगर केमिकल्स युक्त होता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। जिलेटिन वगैरह जो रहते हैं उससे अगर बनाए तो वो वैक्स जो है वो बॉडी में एब्सॉर्ब भी नहीं होता है और उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। फिर उसको अलग ट्रीटमेंट से जो है चिलेटिंग एजेंट वगैरह जो है या बाल वगैरह जैसे कंपाउंड है उससे उसको डिसॉल्व करना पड़ता है। ओके सर, ओके, एक जन पूछ रहे कि कैन वी यूज कैंट वेजिटेबल क्लीनर? हाँ तो केंट जो है जो पानी का जो मशीन है वो ना हाँ जी, केंट, हाँ तो हाँ केंट कैंट, में क्या है, केंट हाँ, तो केंट का ऐसा है कि उसका आप यूज कर सकते हैं मगर उसका पीएच जो है वो 9 के ऊपर होना चाहिए। उसका पीएच जो है वो अल्कलाइन होना चाहिए। अगर वो नेचुरल पीएच जो है 6-5 से अगर 7 के अंडर में या 8 के आसपास अगर है तो उससे आपको पेस्टिसाइड्स या जो कुछ भी सब्जी भाजियां है वो धोए तो आपको कोई फायदा नहीं होएगा।
आपको एक तो एसिडिक से इसको जिससे धोना है, जैसा एसिटिक एसिड वगैरह जो रहता है, या फिर जिसका पीएच जो है वो 4 से कम है, या फिर ऐसा कुछ पीएच रहता है किसी इसमें जो 9, 10, 11 वगैरह जो रहते हैं, कोई मशीन आती है वो मशीन से पीएच बढ़ा सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे मशीन जापानीज करके कुछ मशीन आए हैं, उस मशीन का भी मुझे नाम नहीं मालूम है, लेकिन वो पानी का मशीन है, तो उससे पीने का जो पानी है वो अपने तरीके से अपन वो पी सकते हैं, और मेडिसिनेटेड वैल्यू उसका हो सकता है, और बॉडी में जो है जैसा इरिगेशन हो सकता है, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होती है, बार बार डिहाइड्रेट होती है, और डिहाइड्रेट होने के बाद में इन्फ्लेमेशन होता है, कुछ भी खाने के बाद में इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन के वजह से बॉडी में इतने डिसीजेस होते हैं, जैसा गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, बाद में अगर गले में जहां जहां वहां पे आ गए वहां पे वो फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं, और वहां पे डिसीज हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए करके ये वाटर जो है कैंगेन वाटर करके, उसका देखो कैंगेन करके एक कैंगेन या कुछ वाटर का नाम है, वो वाटर में आप ये लेवल जो है बड़ा अल्कलाइन वाटर जो है वो वहां पे ये तो उससे धो सकते हैं, यानी उससे अच्छा हो सकता है वो। ओके सर, एक जन ने पूछा है कि गेहूं को डिटॉक्सिफाइड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं को तो हम धो ही नहीं सकते। हाँ, तो गेहूं को अगर डिटॉक्सिफाई करना है तो उसका तो उपाय नहीं है, मगर आपको जो है पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि गेहूं में कौन कौन से जगह से आपने गेहूं लाए हैं। जैसा सबसे ज्यादा अभी पूरा इंडिया का अगर एग्जांपल लेंगे तो पंजाब वगैरह साइड में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है, और वो गेहूं अगर यूज आप करते हैं, यानी उसका ये रहता है ना कि कौन से जात का गेहूं है, जैसा एमपी में एमपी सेहोर करके आता है, तो वैसा पंजाब का जो गेहूं है वो गेहूं अगर यहाँ पे आ गया तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड होता है। और दूसरी बात ऐसी है कि वहाँ देखेंगे तो कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहाँ एक ट्रेन जो है वो भर के पेशेंट लेके जाना पड़ता है, इतने पेशेंट वहाँ पे हो गए हैं। तो ये गेहूं जो है जैसा आटा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा उसका कम हो जाता है, बट इसका कोई उतना उपाय नहीं है। यही है कि ऑर्गेनिक गेहूं जो है ये यूज करना, ये ये अपने को जो भी फार्मर होते हैं तो वो फार्मर से जो खेत रख के उन फार्मर से आपको वो गेहूं लेना है, तो उससे ही ये आप फायदा हो सकता है, अन्यथा उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं है। ओके सर। ओके सर, एप्पल को के वैक्स कैसे रिमूव कर सकते हैं? एप्पल पे जो वैक्स आते हैं वो कैसे हाँ, रिमूव कर सकते हैं, और एप्पल के सीड जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं क्या? एप्पल के दो सीड क्वेश्चन। जो है उसको, हाँ, एप्पल का जो वैक्स है, एप्पल का वैक्स रिमूव करने के लिए जो है जो मैंने जो बताया कि अल्कलाइन जो होता है, अल्कलाइन वाटर जो है उससे भी कर सकते हैं। दूसरा है कि क्या करने का कि उसका जो नाइफ वगैरह रहता है या छीलने की जो मशीन जो रहती है, उससे आप उसके ऊपर का जो कवर है वो कवर आपको उससे वो निकालने का है और खाने का, ये सेफ रहता है वैक्स अगर निकालने का है तो। ओके सर। हाँ, ओके सर, और एक है क्वेश्चन कि आपने कल बताया था कि दही और हम लोग उड़द को साथ में नहीं खा सकते हैं, लेकिन तो हाँ, दही वड़े में तो सब मिक्स हो जाता है, तो वैसे आप कैसे बताएंगे? हाँ, तो दही वड़ा जो है ये मैंने इसलिए बताया ये कि क्या होता है कि दही का अगर अलग से लिए और उड़द का जो है, इन दोनों का रस वीर्य विपाक अलग है, उसका रस वीर्य विपाक है, लोग लेते हैं खाते हैं तो वो साथ में हो जाता है, इसीलिए कुछ नहीं होता है। इसलिए साथ में विरुद्ध बताया गया है कि कोई भी चीज बार बार खाते हैं तो उसको कुछ नहीं होता है, अगर एक ही आदमी ने वही खाया तो उसको तकलीफ हो जाएगा, तो ये साथ में विरुद्ध यहाँ पे बताया गया है। तो दूसरी बात ऐसा है कि देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसा चाय और चपाती लोग तो खाते हैं कुछ नहीं होता है, मगर चाय और चपाती का जो गुण है वो अलग अलग है, चाय का रस विपाक अलग है,
उसमें दूध होता है, चपाती का रस यूरोपाक अलग है, उसमें कोई कोई सॉल्ट भी डालते हैं। और मैंने ऐसे हजारों केसेस देखे हैं कि उसको क्या हो गया है कि तुरंत नहीं, मगर 3-4 साल के बाद में उनको सोरियासिस जैसे पेशेंट, मेरे पास में हजारों पेशेंट आते हैं, तो वो उनको मैं पूछता हूँ कि आपने चाय चपाती लिए क्या, या समझो ऐसा दही दही जो है या उड़द है ऐसा लिया क्या, ये मैं पूछता हूँ। तो अगर ऐसा अगर कोई लेते हैं तो उसको कुछ लगता नहीं है, मगर उसका बाद में इफेक्ट चालू हो जाता है, ज्यादा दिन के बाद में, जैसा एसिडिटी वहां पे होना चालू हो जाता है। तो बेस्ट वे ऐसा है कि ये अवॉइड करना, बार बार नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना बहुत जरूरी है। लेकिन फूड जो है वो तो ब्रेकफास्ट में वगैरह खाते हैं, साथ में हो जाता है, इसलिए उनको उतना कुछ लगता नहीं है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जो है वो होते हैं, एसिडिटी वगैरह लोगों को होता है। ओके सर, अभी आपने बताया था बेकिंग सोडा हमको जब भी वेजिटेबल फ्रूट्स जब भी हमको यू नो क्लीन करना होता है तो बेकिंग सोडा डालना पड़ता है, तो उसका कुछ क्वांटिटी होता है, पोर्शन होता है डालने के लिए? हाँ, कितना उसका जो डाल है सकते कि ऐसा 20 ग्राम वगैरह जो है वो अपन डाल डाल देने का है ना। वैसा क्या है कि कितना सब्जी भाजी है, कितना क्वांटिटी है, उसके हिसाब से अपने को डालने का। जैसा जैसा आधा किलो वगैरह है तो अपन 1-2 चम्मच डाल देंगे, फिर वो पानी में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में फिर जो कुछ भी सब्जी भाजी है उसको क्या है रब करना पड़ता है थोड़ा सा, तो उसमें वो निकल जाता है। ओके, और कितना टाइम पानी में रखना है? आपने बोला था आधा घंटा। हाँ, आधा घंटा रखने का, तो उससे वो फिर निकल जाता है धीरे धीरे, उसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो होती है और वो निकल जाता है। ओके, और एक क्वेश्चन है, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी आर बाइंग आर फ्रेश एंड नॉट पॉल्यूटेड विद द पेस्टिसाइड्स? हाँ, तो दूसरा कैसा है कि आपको अगर समझो मटर है, तो मटर अगर कैल्शियम कॉपर सल्फेट का वहाँ पे यूज होता है, या स्पिरिट्स वगैरह जो है इसका वहाँ पे यूज करते हैं, तो कोई लोग क्या करते हैं, कलर जो रहता है ना, तो कलर लगाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि एक पानी लेना चाहिए, और पानी में वो जो सीड्स जो है वो उसमें डालना चाहिए। जैसा जीरा वगैरह जो है वो भी अभी डुप्लीकेट बनता है। उसके बाद में ये केसर वगैरह है, ये भी डुप्लीकेट बनाया जाता है, केसर ये केमिकल से बनाया जाता है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि आप वो जो भी पदार्थ है फ्रेश वाटर लेने का और उसमें डालने का, तो उसका कलर अगर चेंज होता है तो समझ लेने का कि वो फ्रेश नहीं है, उसमें कुछ तो भी केमिकल्स डाला हुआ है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज करते हैं। और जैसा फल वगैरह जो रहते हैं, तो वो फल को भी या सब्जी भाजी को भी वहाँ पे मिक्स करते हैं। और फिर वो फ्रेश वहाँ पे अपने को दिखती है। दूसरी बात ऐसी है कि अ, कुछ इंजेक्शन जो है ऑक्सीटोसिन के वगैरह जो इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन कुछ सब्जी भाजी को देने के लिए यूज करते हैं। तो देखो कानपुर वगैरह साइड में है, तो क्या होगा कि रात में अगर देखेंगे कि इतना फ्लावर है, और उसको इंजेक्शन देने के बाद में सुबह देखेंगे तो आपको 2 या 3 पट जो है आपको उसका साइज जो है बड़ा मिलता है। तो ज्यादा साइज के ऊपर नहीं जाने का है आपको, वो उसका ये देखने का है कि ये फ्रेश भाजी पाला जो है ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। और जो है छोटा भी रहा तो भी आप उसको ले सकते हैं, और जिसको केमिकल डाले तो वो जल्दी खराब हो जाता है 2-3 दिन में। जैसा केले है, केले में भी कैल्शियम कार्बाइड अगर डालते हैं तो वो भी 2-3 दिन में जो है जल्दी से जल्दी खराब होते हैं। लेकिन ओरिजिनल केले हैं जो नहीं होते हैं, तो उसके भी अगर समझो केले का कैसा है कि ज्यादा से ज्यादा अगर डार्क येलो है तो समझ लेने का कि इसने वो पकाया हुआ है, कच्चे केले को ये डाल के पकाया हो। तो केला भी जो रहता है उसमें जब अगर छोटे छोटे अगर पॉइंट रहते हैं, ठिपके रहते हैं, जो छीटा वाला जो केला बोलते हैं, तो वो लेना चाहिए, वो ओरिजिनल यहाँ पे होता है। तो सब्जी भाजी को देखने के वक्त ये घर में लाने के बाद जैसा लाते हैं तो उसमें ये आपको देखना पड़ता है कि क्या अडल्ट्रेशन है या नहीं है। तो ये आपको मिक्स करके यानी पानी में डाल के आपको देखना पड़ता है कि उसका कलर निकलता है या नहीं निकलता है। ओके सर, हम लोग दूध हल्दी वाले मिल्क में सॉल्ट डाल सकते हैं क्या?
उसमें नहीं डाल सकते हैं आप, उसमें शुंठी डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, जेस्टमद भी डाल सकते हैं उसमें, और दूध पी सकते हैं। अगर इसमें अगर आपने मीठ अगर नमक अगर डाल दिए तो आपको विरुद्ध आहार के इसमें चला जाता है, क्योंकि उसका रस जो है वो लवण रस के इसमें आ जाता है, खारट रस जो है बोलते हैं उसमें जो है वो होता है, और इसका जो दूध जो है वो मधुर रस यानी मीठा रहता है। तो ये एक में के इसमें अगर लिए तो बाद में स्किन जैसे डिसीजेस है और हेडेक है और माइग्रेन जैसे जो डिसीजेस है, एसिडिटी है, ये यहाँ पे होता है, कैंसर भी हो जाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं। फिर ये फ्री रेडिकल्स के नहीं होने के लिए फिर एंटीऑक्सीडेंट देना पड़ता है। और हल्दी जो है ये बहुत रिच एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट के इसमें बहुत अच्छा है। जैसा जीरा है, जीरा में भी ये उसका अच्छा एंटीऑक्सीडेंट करके है, आंवला है, अश्वगंधा है, ये उसके अच्छे हैं। ओके ओके सर, अभी हाँ एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग नॉन स्टिक जो होता है, नॉन स्टिक पैन सब लोग यूज करते हैं, नॉन स्टिक बर्तन, वो जी अच्छे होते हैं जी। क्या? नॉन स्टिक ये है, ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि नॉन स्टिक में मैंने कल बताया कि उसको जो है जो पेस्ट होता है कि जो बुलेट का जो पाउडर होता है बारीक करके उसका वहां पे लगाया होता है। तो फिर आप देखेंगे कि जो कढ़ाई वगैरह होती है, नॉन स्टिक कढ़ाई, कुछ दिन के बाद में घिसने के बाद में उसका वो कलर निकल जाता है। तो वो कलर क्या है कि वो पॉइजनस जो उसमें ये करते हैं, पेस्ट करते हैं, वो निकल जाता है। और धीरे 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 अगर निकलने के बाद में फिर उसको क्या बोलते हैं उसको, कैंसर के इसमें पैदा होता है, कार्सिनोजेनिक है वो। ओके सर। हाँ, और एक बॉडी लोशन हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो भी हार्मफुल है? बॉडी लोशन आप कौन सा यूज करते हैं उसके ऊपर है कि बॉडी लोशन यूज करते वक्त आपको उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सा अल्कोहल वगैरह यहाँ पे यूज करते हैं, और अल्कोहल प्रिजर्वेटिव के इसके यूज करते हैं। जैसा लैक्मे के वगैरह जो प्रोडक्ट आते हैं, या बहुत से ऐसे कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, तो उनके जो प्रोडक्ट आते हैं तो उनमें क्या होता है कि ये प्रिजर्वेटिव डालते हैं, और वो प्रिजर्वेटिव खतरनाक होते हैं। तो जिस इसमें जैसा एलोवेरा है, फ्रेश एलोवेरा अगर आप उसका लोशन अगर बना के अगर यूज करते हैं तो आपको उसका अच्छा इफेक्ट है, बहुत अच्छा फ्रेशनेस आएगा उसमें, और ग्लोरी भी अच्छी रहेगी, ब्यूटीफुल आदमी दिख सकता है। और ये पेस्टिसाइड, ये क्या बोलते हैं उसको, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव ये शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन कुछ कंपनियां जो है, एक ऐसी आयुर्वेदिक कंपनी है जिसका एक वो कंपनी, एक मिनट में, एक उसका कंपनी का नाम जो है सामी करके का कंपनी, सामी, सामी नाम की, SAMI, साइंटिफिक आयुर्वेदिक मेडिकल ड्रग्स का एक कंपनी है। तो वो कंपनी का जो ये आता है उसमें वो यूज नहीं करते हैं, ये प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते। तो वो उनका जो लोशन है वो मैंने जो देखा है तो वो अच्छा है, एक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों को। ओके सर, रोज जो मॉर्निंग में हल्दी खाते हैं एम्प्टी स्टमक, वो अच्छा होता है क्या? देखो आप जो है ना हल्दी खाते हो, मगर उसका उतना इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हल्दी या कोई भी सब्सटेंस है उसमें कुछ हानिकारक तत्व रहते हैं और कुछ अच्छे भी तत्व रहते हैं, यानी हार्मलेस रहते हैं और हार्मफुल भी रहते हैं। तो हल्दी का ऐसा है कि आप वहाँ पे जो अच्छा तत्व जो है वो कर्क्यूमिन करके एक वहाँ पे जो है वो यूजफुल है, कर्क्यूमिन। तो अगर समझो 10 किलो अगर हल्दी है तो वहां से आधा भी नहीं, 1 पाव कर्क्यूमिन निकलेगा। और बाकी का या यानी आधा किलो से हाँ 1 पाव से आधा किलो तक कर्क्यूमिन वहां से निकल सकता है। और उसके बाद में जो बाकी का वो कचरा है, वो खाने का जो है ना वो कचरा है। इसलिए आप क्या करो कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो कर्क्यूमिन का एक स्पेशल पाउडर आता है
95 उसका परसेंटेज होता है, 95 से 100% केस में, वो करक्यूमिन अगर आपने थोड़ा सा भी डाल दिया, यानी एक 2-3 चम्मच हल्दी डालने के बजाय आपने थोड़ी सी भी वो करक्यूमिन का डाल दिया, तो आपको उसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। आपको कार्सिनोजेनिक यानी आपको कैंसर वगैरह से जो है इससे छुटकारा मिलेगा। ये अच्छी से अच्छा आपके बॉडी में हेल्दी रखने के लिए काम कर सकता है। तो ये इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी हो गया है। अमेरिका में एक डॉक्टर अग्रवाल है, तो इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च भी किया है, और उसकी टैबलेट भी आती है करक्यूमिन नाम की। उसका एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसका टैबलेट भी आप बहुत से कंपनियां जो बनाते हैं करक्यूमिन नाम से, तो वो अगर आपने लिया तो आपका हेल्थ ये अच्छा रह सकता है हल्दी लेने के बजाय। लेकिन आप जो है चाय चपाती जो है ना, ये मेरा आप सभी को बताना है कि चाय चपाती आप मत खाओ, क्योंकि मेरे पास में बहुत से ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि जो, क्योंकि इजी रहता है, तो किसी को जॉब पे जाना पड़ता है तो चाय में चपाती मिलाए या ब्रेड वगैरह जो है ये मिलाए और तुरंत खारी वगैरह खाते हैं, तो अच्छा रहता है। लेकिन ये बहुत बेकार चीज है, इसको अवॉइड कर लेना चाहिए। सर तो चपाती से जो खाखरा बनाते हैं वो खा सकते हैं क्या? देखो खा सकते हैं क्या, खा तो सकते हैं, मगर उसका साइड इफेक्ट है उधर सेम उसका। ही अगर होगा आपको क्योंकि अगर अपनी बॉडी अच्छा रखना है तो आप उसको ये करना बहुत जरूरी है, यानी क्या बोलते नहीं खाना चाहिए। तो आप कह रहे ब्रेड चपाती खाखरा सबको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर ब्रेड बनाना है तो गेहूं का घर में जो बनाते हैं वो ब्रेड आप बना सकते हैं, घर में बनाया हुआ। लेकिन वो अगर आपको ये लेना भी है तो आप ब्लैक टी ले लो, और ब्लैक टी के साथ में आप चपाती खाओ, जो कुछ भी खाना है वो खाओ, क्योंकि वहां पे दूध होता है। दूध वाली चाय जो है उसके साथ में नहीं खाने के लिए बोला है। आप ब्लैक टी वगैरह जो रहता है उसके साथ में आप खा सकते हैं, ब्रेड भी खा सकते हैं। अच्छा सर, आपने वेजिटेबल बोला बेकिंग सोडा में धोने के लिए, तो क्या फ्रूट्स भी धो सकते हैं उसके साथ? हाँ, धो सकते हैं, उसमें उसमें भी धो सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि एक अल्कलाइन वाटर जो आता है, जो पीएच ज्यादा है वो उससे लिए तो उसका ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसा फ्रूट्स में एप्पल एप्पल है, उसके बाद में पेरू है। और दूसरी बात ऐसा है कि आप लोगों को जो सीजनेबल फल है वही खाना चाहिए। ये सस्ते भी रहते हैं, अच्छे रहते हैं, और जो जो बहुत दिन के जो और ऐसे चमकने वाले नहीं खाना चाहिए। उसको बहुत कालावधि से वो फ्रिज में रखे होते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल के, वो हानिकारक होते हैं। इसलिए आम के सीजन में आम खाना चाहिए, और जैसा सीताफल है उसके सीजन में सीताफल खाना चाहिए। ओके सर। सर कोई नाम आप देंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए? प्लीज गिव नेम ऑफ द अल्कलाइन सॉल्यूशन। एक एक पार्टिसिपेंट ने पूछा हुआ है। अल्कलाइन सॉल्यूशन में जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट है। एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम वाला भी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी उसको आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, अल्कलाइन के लिए। तो जो भी अल्कली है वो आप इसमें डाल सकते हैं। ओके सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस में ले रही हूँ। किसी ने पूछा है कि खीर में भी तो दूध होता है, तो खीर भी अवॉइड करनी है या चपाती खीर नहीं खानी है, ऐसा कुछ? देखो खीर में जो है, देखो जो चावल है तो उसका गुण अलग है, लेकिन उसमें नमक नहीं डालना है। आप तो जैसा दूध का गुण है मीठा, मीठापन, यानी मधुर मधुर रस, और और जो है चावल में भी मधुर रस रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मधुर और ये भी मधुर, ये एक जैसा होता है, तो ये ले सकते हैं, इसके कोई बुराई नहीं है। खीर खा सकते हैं, दूध में आप चावल डाल के उसको आप खा सकते हैं, इससे सर कुछ नहीं होएगा, अच्छा रहेगा। ओके सर, तो एक जन पूछ रहे हैं कि अगर हमने दही को गर्म करके खाया तो? अगर आपने दही को अगर गर्म करके खाया तो वो संस्कार विरुद्ध हो जाता है।
दही को गर्म करके खाने से वो पॉइजन बन जाता है, वो पॉइजन बनता है। Okay. Sir, ये last सब question. पॉइजन है, व्हाइट पॉइजन है, जैसा आ, हेलो, मैदा जो है ये एक व्हाइट पॉइजन है, शुगर एक व्हाइट पॉइजन है। हाँ, तो शुगर भी नहीं खाना चाहिए। उसके बदले में अगर ऑर्गेनिक गुड़ अगर है तो वो ऑर्गेनिक गुड़ आप ले सकते हैं। चाय में भी डालने के लिए आप शुगर के बदले ऑर्गेनिक गुड़ ले लो, क्योंकि आपको बताता हूँ कि शुगर अगर खाने के बाद में बॉडी की सिस्टम इतनी डैमेज हो जाती है, सेल्स इतने डैमेज हो जाती है, और रिकवर करने के लिए आपको आधा घंटा लगता है, आधा एक घंटा लग जाता है। आपकी बॉडी जो है उसको यानी इतना खर्चा हो जाता है बॉडी का जो स्टेमिना है। इसीलिए आपने कम से कम शक्कर लेना चाहिए। शक्कर वैसा भी आपके जो गेहूं है, चावल है, इसमें जो है आपके शक्कर वैसी भी है, इसलिए ज्यादा शक्कर लेने की कोई जरूरत नहीं है। फल में भी शक्कर रहती है। तो आप, और जो नमकीन जो है, तो नमकीन एक्चुअली अपन जो सब्जी जो बनाते हैं उसमें भी आप नमक डालते हैं, चपाती में भी नमक डालते हैं, चावल में भी नमक डालते हैं, कुछ वेपर्स वगैरह है उसमें है, फरसान है इसमें भी नमक रहता है। तो ये भी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा नमक डालना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है कि आदमी का सिस्टम खराब हो जाता है, और उसका एज जो है, यानी एजेड लगता है वो आदमी। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ओके सर, अभी मैं लास्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ। अगर आपने बोला गुड़ अच्छा है तो आप तिल के साथ गुड़ ले सकते हैं क्या? वो जो हम लोग चिक्की बनाते हैं तिल और गुड़ की। हाँ, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि चिक्की बनाते वक्त आपने जो है वो ये जो रहता है उसका गुड़ का जो पाक जो रहता है, बराबर है, तो वो पाक में बनाने के बजाय, जैसा ये तिल संक्रांत में कैसा तिल का जो लड्डू बनाते हैं, तो कोई लोग क्या, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि तिल को बारीक करते हैं, और गुड़ को बारीक करते हैं, मिक्स करते हैं, और उसका लड्डू बनाते हैं। ये नेचुरल खाने को और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा है। अगर आप पाक बनाते हैं और करते हैं तो ये आपको डाइजेशन के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए आपने जो है खाना है तो मिक्स करके आप उसको खाइए, पाक मत बनाओ। ज्यादा पाक बनाए तो वो इसका बॉडी को उतना अच्छापन नहीं है। लोग अलग अलग अपने तरीके से बनाते हैं, कड़क हो जाता है वो, और वो पचता नहीं है। यानी गैस्ट्रेंट कॉन्स्टिपेशन जैसे जो है, एसिडिटी जैसे हाइपर एसिडिटी वगैरह जो है, और ऐसे विकार जो है वो हो जाते हैं उसमें, ओके सर, ओके ओके, चिक्की से। थैंक यू सर। यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। कंक्लूडेड रिमार्क में देना चाहती हूँ कि इंडिया अभी लार्जेस्ट यूजर्स है पेस्टिसाइड्स इन द वर्ल्ड। इट इज इट इज सो बैड दैट हम लोग इतनी तरह से इनहेल कर रहे हैं, स्किन थ्रू अपना पेस्टिसाइड जा रहा है, और इतना वो डेंजरस होता जा रहा है इस वक्त कि हमको वो सब अवॉइड करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया कि कैसे पेस्टिसाइड से बाहर आना है, कि कैसे कैसे चीजें हमें यूज करके हम लोग पेस्टिसाइड्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दैट सर। एंड अभी एंड में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, बिफोर वी wind up, we would like to extend our gratitude towards our today's speaker, Dr. Suryabhan Dongre. Thank you all the viewers for participating so actively. Tomorrow on 9 September 2020, we will be hosting our 13th health webinar, in which healer NM Kamath will be talking on fast is a fast cure, sharp at 5 p.m. You can visit our website www.castfoundation.org. You can even follow us on Instagram and Facebook. Myself, Alpa Mehta, team member of Cast Foundation, signing off here. Thank you, everyone. Good night.